Good evening everyone. Welcome to online session of Cross and Climb. In this series we were completing all the topics which are important for your MSET and other law entrance exam. So in the last classes we had started the subject of law of contract. So we had started every kind of contract starts with proposal or offer. So proposal or offer is the first step towards the formation of contract, and the second and very crucial step is acceptance. So proposal is just a mere statement unless accepted, right? तो proposal में जैसे ही acceptance add हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? Promise. Proposal when accepted becomes promise, and when promise is accompanied by consideration, जैसे ही हम promise में consideration add कर देंगे it will convert to agreement. So today we will be going to determine what is consideration. See, let us take an example. A is the seller. He is selling some goods to buyer who is B. और यहाँ पे B A को क्या दे रहा है? He is giving money. तो बेसिकली वही सेल परचेज, राइट? कभी भी हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कभी भी कुछ सामान हम बेचते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं. तो यहाँ पे ए बी को सामान बेच रहा है एंड बी यहाँ पे इन रिटर्न मनी पे कर रहा है. सो व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर ए? यहाँ पे सेलर के लिए क्या कंसिडरेशन है? सेलर को क्या मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में? ही इज गेटिंग मनी. तो मनी इज कंसिडरेशन फॉर ए. यहाँ पे B को रिटर्न में क्या मिल रहा है? B is getting goods. That is consideration for B. तो whatever you get in return from the other party in a contract, that is called consideration. जो भी आपको रिटर्न में मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो आपके लिए कंसिडरेशन है. तो हमेशा अब हम देखेंगे इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर विल बी टू प्रोमिसेस. ए बी को भी कुछ प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए, बी भी ए को कुछ प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए. लेट्स से ए बोल रहा है आई विल गिव माई प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू यू, एंड बी यहाँ पे बोल रहा है आई विल पे द रेंट. तो यहाँ पे ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? रेंटल अमाउंट विच द लैंडलॉर्ड विल बी गेटिंग, राइट? और यहाँ पे बी के लिए क्या कंसिडरेशन होगा? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. दैट इज कंसिडरेशन फॉर बी. तो कंसिडरेशन को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, इट इज क्विड प्रो क्यो. QUID, quid pro quo means something in return. कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो भी चीज रिटर्न में मिल रही है that is consideration for you. Let us consider the definition of consideration. Consideration की definition दी है section 2 clause D of Indian Contract Act, which says that when at the desire of the promisor, this is an important term, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. तो first term यहाँ पे क्या है? At the desire of the promisor. That is, consideration must move at the desire of the promisor. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. Let's say A and B के बीच में, let's say there is no contract between A and B. B खुद से ही A के लिए कल चॉकलेट्स लेके आता है और बोलता है कि मुझे 500 रुपए दो, ये 500 रुपए की चॉकलेट्स है, आई नीड 500 रुपीज. तो इज A liable to make this payment 500 रुपीज? B यहाँ पे खुद से चॉकलेट्स लेके आया, he has acted voluntarily, right? There was no promise or no desire from A side. तो क्या ये consideration में काउंट होगा? No, it is not a consideration. क्यों consideration में काउंट नहीं हो रहा है? क्योंकि ये consideration at the desire of promisor नहीं हो रहा है. Which means जो मैंने आपको करने के लिए कहा है, अगर आप वो मेरे लिए करते हो तभी वो consideration में काउंट होगा. Any act done voluntarily, that is not a consideration. वो consideration नहीं होता. तो let's say कल मेरे लिए कोई फोन लेके आता है, कोई कि let's give this phone to ma'am, right? तो क्या मैं liable हूँ उसे उसके लिए पे करने के लिए? No, I am not liable, right? अगर मैं बाद में रख लेती हूँ उसे, let's say I accept the gift,
फिर क्या मैं लायबल हूं उसे पे करने के लिए? यस, अब मैं लायबल हूं। लेकिन जब तक कोई भी काम मेरे डिजायर पे नहीं हो रहा है, जब तक वो चीज मेरे ऊपर इंपोज की जा रही है, वो एक्ट मेरे ऊपर इंपोज किया जा रहा है, तब तक मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं। आई एम नॉट लायबल टू पे द कंसिडरेशन बिकॉज देयर इज नो डिजायर फ्रॉम माई साइड। मेरी साइड से कोई भी डिजायर नहीं था। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, विच मीन्स एनी एक्ट वॉलंटरली डन डजंट अमाउंट टू कंसिडरेशन. Next term is the promisee or any other person. This is also an important term and you can expect questions on this term also, right? तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो consideration है वो कौन देगा? Promisee भी दे सकता है या फिर किसी और person के थ्रू भी consideration आ सकता है, right? जब हम acceptance की बात कर रहे थे तब हमने क्या देखा था कि acceptance जिस person को मैंने offer दिया है उसी person की साइड से acceptance आनी चाहिए. Let's say A ने B को बोला है Will you purchase my property for let's say 50 लाख रुपीस. तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी बी की साइड से आने चाहिए. अगर बी खुद से एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है तो कोई भी उसका ड्यूली ऑथराइज एजेंट उसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे सकता है. बट इफ आई टॉक अबाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन एज वेल. विच मीन्स अगर ए बी को वॉच सेल कर रहा है तो बी की जगह बी के फादर भी कंसिडरेशन पे कर सकते हैं एंड इट इज वैलिड कंसिडरेशन. क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या यूज है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन प्रोमिसी की साइड से भी आ सकती है या प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और कंसिडरेशन भी पे कर सकता है एंड दैट इज वैलिड कंसिडरेशन इन इंडिया. तो अगर ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल सेल यू माई वॉच, राइट, तो पेमेंट जरूरी नहीं है बी की साइड से ही आने चाहिए. बी के फादर भी बी के बिहाफ पे कंसिडरेशन दे सकते हैं एंड इट इज वैलिड कंसिडरेशन, राइट. एंड फॉर दिस वी हैव एन इंपॉर्टेंट केस लॉ विच इज रमैया वर्सेस चेन्नैया. सॉरी, इट इज द अदर वे राउंड, चेन्नैया वर्सेस रमैया. तो देखो इसके फैक्ट्स कंसीडर करते हैं. There was a mother, she gifted entire property to the daughter with the condition that the daughter will pay certain money to her uncle which is mother's brother. तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मदर एंड डॉटर के बीच में है. किससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड. कि मदर सारी प्रॉपर्टी किसे देगी? डॉटर को दे देगी. लेकिन एक कंडीशन उन्होंने क्या लगाई है कि कुछ टाइम तुम पर मंथ कुछ पैसे अंकल को भेजते रहना, राइट. तो लेटर डॉटर स्टॉप्ड पेइंग द अमाउंट टू अंकल, राइट. तो डॉटर यहाँ पे क्या कहने वाली है कि अंकल की साइड से मुझे कंसिडरेशन थोड़ी मिल रहा है, मैं उन्हें क्यों पे करूं, राइट. बट कैन अंकल फाइल सूट अगेंस्ट डॉटर? यस, यहाँ पे अंकल डॉटर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं. क्यों सूट फाइल कर सकते हैं? क्योंकि अंकल बोलेंगे चाहे मैंने कंसिडरेशन नहीं दिया डॉटर को लेकिन मेरे बिहाफ पे मदर ने कंसिडरेशन दिया है, और अगर आप किसी और के बिहाफ पे कंसिडरेशन दे रहे हो इट इज वैलिड. क्योंकि टर्म्स क्या यूज थे? द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ईदर ऑफ देम कैन फर्निश द कंसिडरेशन. Next is has done or abstained from doing. Does or abstains, promises to do or abstain from doing something. Has done or does or promises to do. It means that consideration can be past, present or future. जब हम has done की बात कर रहे हैं it means past consideration भी हो सकता है. Does means present consideration. Future means promises to do means future consideration. So consideration can be past, present or future. For example, in the month of January, I gave coaching to someone and he is paying me now. तो क्या ये जो मैंने सर्विसेज दी है जनवरी के मंथ में, क्या वो पास्ट कंसिडरेशन में आएगा? Yes, it is past consideration. Means whatever consideration you have done in the past itself, वो past consideration हो जाएगा, जो पहले वो काम हो चुका है. Present consideration का क्या मतलब है? Let's say A gives watch to B right now and B gives him 500 rupees.
These both are present consideration कि मैंने अभी किसी को वॉच दे दी, अभी सामने वाले पर्सन ने मुझे 500 रुपीज दे दिए. फ्यूचर कंसिडरेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, लेट्स से वी डिसाइड अ डे दैट ऑन संडे वी विल मीट, आई विल गिव यू माई वॉच एंड यू गिव मी मनी. दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन, राइट. तो इंडिया में कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कंसिडरेशन अलाउड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन कहां से आना चाहिए. प्रॉमिसी से भी आ सकता है, किसी और पर्सन की साइड से भी कंसिडरेशन आ सकता है. तो लेट्स से अगर मैंने किसी और को वॉच दी है, बी पर्सन को वॉच दी है, तो बी के फादर या बी के फ्रेंड बी के बिहाफ पे मुझे कंसिडरेशन दे सकते हैं, मुझे 500 रुपीज दे सकते हैं एंड इट इज वैलिड, वो वैलिड माना जाएगा. एंड इंपॉर्टेंट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट माई डिजायर, यानी कि जो मैंने सामने वाले को करने को बोला है, अगर वो पर्सन वो एक्ट कर रहा है तभी वो वैलिड कंसिडरेशन में आएगा. अगर वो खुद से मेरे लिए कोई भी वॉलंटरी एक्ट करता है, मैं इसमें एक एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स से ए एंड बी आर नेबर्स एंड बी's house is on fire and B has gone to Canada. लेट्स से बी बहुत दूर है, कनाडा में है, बी का नंबर भी नहीं लग रहा है, तो ए इज नॉट एबल टू कनेक्ट बी. यहाँ पे ए क्या करता है, वॉलंटरी हेल्प करता है. ही मेक्स एवरी एफर्ट टू गेट द फायर एक्सटिंग्विश्ड. तो यहाँ पे लेट्स से उसके 50,000 रुपीज लग जाते हैं. इज ए इंटाइटल्ड टू रिकवर दिस मच अमाउंट टू बी? नो, यहाँ पे 50,000 देने के लिए बी लायबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ए का खुद का वॉलंटरी एक्ट था. लेकिन अगर बी बाद में वॉलंटरी हेल्प के लिए थैंक्स कहना चाहता है या 50,000 रुपीज देना चाहता है, इट इज वैलिड. फिर वो वैलिड में हम कंसीडर करेंगे. लेकिन जो भी वॉलंटरी एक्ट एक ही साइड से हुआ है उसे हम कंसिडरेशन में काउंट नहीं करते हैं. एंड हियर वी हैव रेड एन इंपॉर्टेंट टर्म विच इज एब्सटेन, यानी कि सेम थिंग विच वी हैड स्टडीड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल. कि प्रपोजल में हमने देखा था टू डू और एब्सटेन, यानी कि प्रपोजल पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता था, कुछ करने के लिए भी हो सकता था, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता था. सेम थिंग है, कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. यहाँ पे एब्सटेन का क्या मतलब होता है, नॉट टू डू समथिंग विच इज नेगेटिव इन सेंस कि तुम ये मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, एंड इट इज वैलिड. क्योंकि डेफिनेशन में क्या हम रीड कर रहे हैं, एब्सटेन टर्म हम स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे लेट्स से वाइफ, शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड. वाइफ अब क्या कर रही है, सूट फाइल करने जा रही है कि मुझे हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए. तो यहाँ पे हस्बैंड क्या बोलता है, डोंट फाइल सूट, आई विल गिव 50,000 रुपीज टू यू पर मंथ बाय माई सेल्फ. कि सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही तुम्हें 50,000 रुपए देता रहूंगा. तो क्या ये कंसिडरेशन में काउंट होगा? यस, इट इज कंसिडरेशन इवन इफ इट इज फॉर नॉट टू डूइंग समथिंग, राइट. कि कुछ नहीं करने के लिए भी है तब भी ये वैलिड कंसिडरेशन में काउंट होगा. Okay, let us see what are the essentials of valid consideration. I think most of them we have already studied. The consideration must move at the desire of the promisor, which means वही चीज कि any act voluntarily done doesn't amount to consideration. Consideration may move from the promisee or any other person. यानी कि promisee की साइड से भी consideration आ सकता है, promisee के behalf पे कोई और भी consideration मुझे furnish कर सकता है and it is valid. थर्ड है कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, राइट. तो लेट्स से ए बी सी वो प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं रॉबरी करके आते हैं और जितना भी फ्रॉड से रॉबरी से जितना भी पैसा आएगा हम आपस में बांट लेंगे. क्या ये वैलिड कंसिडरेशन या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा? नो, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. क्योंकि जहां पे भी थोड़ी भी इलीगैलिटी आ गई वो वैलिड कंसिडरेशन या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए. तो कुछ ऐसी चीज नहीं हम बोल सकते कि चलो मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने को रेडी हूं और तुम मेरे लिए लेट्स से यू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, राइट. तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो अनरियल है या इम्पॉसिबल है. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मे नॉट बी एडिक्वेट, विच मीन्स लेट्स से ए की एक प्रॉपर्टी है विच इज वर्थ 1 करोड़ रुपीज. A wishes to sell this property to B for 10 lakh. Is it valid consideration?
क्या ये वैलिड कंसिडरेशन में आएगा? यस, दिस इज वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमटेरियल। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ की देनी पड़ेगी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग विच पार्टीज हैव टू डिसाइड अमंग देमसेल्व्स, राइट। इन्हें देखना पड़ेगा कि कितने की प्रॉपर्टी बेचनी है, कितने की नहीं बेचनी है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इनकी मर्जी है 2 करोड़ की बेचे, 10 लाख की बेचे, इट इज देयर विश। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग which is between the parties and the terms have to be decided by the parties themselves। तो यहाँ पे consideration even though it is inadequate लेकिन ये फिर भी valid consideration में आएगा। तो inadequacy of consideration doesn't matter provided there is free consent between the parties। जब तक इन दोनों का consent free है तब तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ए को बाद में ऑब्जेक्शन रेज होता है और ए बोलता है मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ था, तभी मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच दी, राइट। तो यहाँ पे इशू अराइज होता है। यहाँ पे कोर्ट इस चीज को चेक करेगा, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को चेक करेगा ये डिसाइड करने से पहले कि एक्चुअली फ्री कंसेंट था या नहीं था। एज लॉन्ग एज देयर कंसेंट इज फ्री, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डजंट मैटर एट ऑल। Okay, next we have to understand this term, nudum pactum. It is an important term. You may expect this term in the exam, right? तो it is a Latin maxim. Nudum pactum का मतलब क्या होता है? Naked promise or just bare promise, denoting a promise made without consideration. And इससे related we have another maxim, ex nudo pacto actionio nor oritur, which means an agreement made without consideration is नॉट लीगली बाइंडिंग और एनफोर्सेबल। इसका सिंपल मतलब है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को कुछ मिल रहा है, दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये वॉइड एग्रीमेंट होंगे। तभी लिखा हुआ था इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, जिसे बोलते हैं नूडम पैक्टम, दैट इट इज जस्ट अ बेयर प्रॉमिस, इट इज जस्ट वॉइड एग्रीमेंट। तो लेट्स से यहाँ पे ए बी को अपनी प्रॉपर्टी दे देता है एंड इन रिटर्न ही गेट्स नथिंग। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? नो, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से कल आप किसी भी पर्सन को चॉकलेट देते हो या फिर कोई भी ऐसा सामान देते हो कि रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। इन सबको हम क्या कहते हैं? बेयर प्रॉमिसेस और जस्ट द वॉइड एग्रीमेंट्स। Section 25 of Indian Contract Act opens with the declaration that an agreement made without consideration is void, which means no consideration is equal to no contract. But we have certain exceptions to this also. Exceptions क्या है? First है natural love and affection. Exceptions का मतलब क्या होता है? See, we have the general rule. जनरल रूल क्या है? नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। लेकिन जैसे ही हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं, एक्सेप्शंस में कैसे होगा कि जैसे ही एक पार्टी की साइड से तो कंसिडरेशन जा रही है, दूसरी पार्टी की साइड से कंसिडरेशन नहीं जा रही है, फिर भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि जनरल रूल होता है, नाउ वी हैव 3 एक्सेप्शंस, तो ये जनरल रूल इन 3 एक्सेप्शंस पे नहीं काउंट होने वाला, विच मीन्स यहाँ पे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगा, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट किया जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज मेड आउट ऑफ लव, natural love, affection. Such agreements are enforceable when the agreement is written and registered. तो इसके लिए हमारे पास we have 3 terms कि आपका एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, सेकेंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, these are essential elements. थर्ड है out of natural love and affection. जैसे ये एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे
वैसे ही अगर एक पार्टी के साइड से कंसिडरेशन मिल रहा है, सेकेंड पार्टी के साइड से कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, फिर भी उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे. लेट्स से फादर out of natural love and affection gives property to son and this promise is in writing and registered. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा? Yes, this is a contract now. Even though father is not getting anything from the son side, ये फिर भी वैलिड कंसिडरेशन में काउंट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं. राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए. जैसे ये सारे एलिमेंट्स प्रूव हो जाएंगे, वैसे ही हम उसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लेके आएंगे, बिकॉज दिस सिचुएशन फॉल्स अंडर एक्सेप्शन 1. व्हाट इज द सेकेंड एक्सेप्शन? लेट अस सी. कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरीली सर्विसेज और प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for which the promiser is enforceable, which means अभी हमने एक चीज देखी थी कि consideration must move at the desire of the promiser and anything which is done voluntarily it doesn't amount to कंसिडरेशन. मतलब अगर सामने से कोई मेरी हेल्प कर रहा है और वॉलंटरी हेल्प है, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं पे करने के लिए. लेट्स से ए का बैग है और कोई चोर है ए का बैग स्नैच करके लेके भाग रहा है. बी पीछे से आता है और इस थीफ को मारने लगता है. ही जस्ट वॉन्ट्स टू हेल्प ए. तो यहाँ पे जो भी बी कर रहा है, लेट्स से बी को लग जाती है इसमें, या फिर जो भी उसके एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, is A liable to pay B for the expenses incurred? No, here A is not liable क्योंकि ये क्या था? Voluntary help थी. Let's say A lost his bag. A का बैग कहीं गुम हो जाता है और B कहीं से ढूंढ के लेके आता है. इवन दो A की साइड से कोई प्रॉमिस नहीं है कि मैं रिवॉर्ड दूंगा या फिर जो भी चीज है, B को कहीं से मिल जाता है बैग और वो A के लिए रिटर्न करता है. तो यहाँ क्या A लायबल है B को पे करने के लिए? नो, हियर ए इज नॉट लायबल बिकॉज ए की साइड से कोई ऑफर ही नहीं आया, राइट? तो ए जो भी बी ए के लिए कर रहा है दैट इज जस्ट वॉलंटरी हेल्प एंड इट डजंट अमाउंट टू कंसिडरेशन. लेकिन जैसे ही ए यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, ओके, यू हैव हेल्प मी एंड फॉर दिस हेल्प आई एम रेडी टू पे यू लेट्स से 10,000 रुपीज. कितना भी अब ए एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टेट करता है कि जो भी आपने पहले मेरी पास्ट वॉलंटरी हेल्प की थी उसके लिए मैं अब कॉम्पनसेट करने को रेडी हूं. नाउ दिस प्रॉमिस अमाउंट्स टू कंसिडरेशन, नाउ इट इज एनफोर्सिएबल. इसे अब हम एनफोर्सिएबल और कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे. तो वही एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था कि ए एंड बी आर नेबर्स, बीज हाउस इज ऑन फायर, ए हेल्प्स बी टू गेट द फायर एक्सटिंग्विश्ड. यहाँ पे अगर B बाद में आता है, क्या A लायबल है, क्या A इंटाइटल्ड है B से कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए? नो, हियर A इज नॉट इंटाइटल्ड. लेकिन अगर B खुद बोलता है कि ठीक है आपने मेरी हेल्प की है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में मैं आपको 50,000 रुपए देने को रेडी हूं, कितना भी अमाउंट हो सकता है, तभी वहां पे लिखा था होली और इन पार्ट. या तो आप पूरा अमाउंट दोगे या फिर पार्ट में भी कितना भी आप अमाउंट दे सकते हो. इट अमाउंट्स टू कंसिडरेशन. नाउ इसे हम अब कंसिडरेशन में काउंट करेंगे बिकॉज इट फॉल्स अंडर सेकेंड एक्सेप्शन. Okay, third exception is promise to pay time barred debt. A time barred debt cannot be recovered as per the law of limitation. However, promise to pay such debt without consideration is valid under section 25 clause 3 of the act. Now we have to understand what is time barred debt. ये होता क्या है time barred debt? तो let's say A owes some money to B. Let's say A ने B से 10 लाख रुपए लिए
और 10 लाख रुपए उसे रिटर्न करने हैं विद इंटरेस्ट, राइट। एंड 1 जनवरी 2023 इज द ड्यू डेट, कि पे कब करने थे, 1 जनवरी 2023 को रिटर्न करने थे 10 लाख रुपीज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट। नाउ ए फेल्स टू पे द सेम। अब इस बात को 2024 1 ईयर हो गया है, 2nd ईयर हो गया है, 3rd ईयर हो गया। क्या 1 जनवरी 2026 के बाद क्या बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? बिकॉज यहां पे सूट कौन सा फाइल होने वाला है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, और उसका लिमिटेशन एक्ट में कितना लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, इट इज 3 इयर्स, यानी कि सिर्फ आपके पास 3 साल है। 3 इयर्स के अंदर अंदर आप अपना अमाउंट रिकवर करा सकते हो, उसके बाद यू डू नॉट हैव द लॉफुल रेमेडी, आप अब कोर्ट में नहीं जा सकते और अपना अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हो। लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? तो इफ यू स्टडी लिमिटेशन एक्ट, देयर इज लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड फॉर एवरी पर्टिकुलर सूट एंड एप्लीकेशन और एंड अपील, राइट। तो हर एक अपील के सामने लिखा हुआ है कि इस अपील को फाइल करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, इस सूट को फाइल करने के लिए आपके पास कितना टाइम है। अगर वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, उसके बाद अब आप कोर्ट में जाके रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हो, तो यू डू नॉट हैव द लॉफुल रेमेडी, राइट। कोई भी रेमेडी, लीगल रेमेडी आपकी रहती नहीं है, योर रेमेडी गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। लिमिटेशन पीरियड का यही मतलब है, लॉ ने आपको इतना ही टाइम दिया है, इतने टाइम के अंदर अंदर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज योर सूट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। तो वैसे ही सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी के लिए हमारे पास 3 इयर्स होते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 इयर्स, विच मीन सामने वाले से अगर मुझे अपने पैसे रिकवर कराने हैं तो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ही मैं रिकवर करा सकती हूँ। एंड दिस 3 ईयर पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट व्हेन द पेमेंट बिकम्स ड्यू। जैसे ही पेमेंट ड्यू हो जाती है, विच मीन सामने वाला मुझे बोलता है कि मैं आज 1 जनवरी 2023 को पे कर दूंगा, उससे हम 3 इयर्स काउंट करते हैं 2026 तक। अगर वो मुझे पे नहीं करता है और मैंने उससे रिलेटेड कोई लॉफुल रेमेडी भी क्लेम नहीं की है, मैं कोर्ट नहीं गई हूं, मैंने सूट फाइल नहीं किया है, तो 2026 के बाद मैं कोर्ट में जाके रेमेडी क्लेम नहीं कर सकती हूँ। इसे हम बोलते हैं टाइम बार्ड डेट, विच मीन्स आफ्टर 1 जनवरी 2026 माई डेट बिकम्स टाइम बार्ड। लेकिन अगर टाइम बार्ड डेट भी हो जाता है, तो लेट्स से 1 जनवरी 2026, अब मुझे लग रहा है कोर्ट में तो मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ए की कंसाइंस जाग जाती है और ए बोलता है ठीक है, आई एम रेडी टू पे यू नाउ। वो कितना भी हो सकता है, अब इसकी मर्जी है, क्योंकि बी के पास तो अब कोई लॉफुल रेमेडी है नहीं, राइट। बी कैन नॉट क्लेम हिज अमाउंट एज अ मैटर ऑफ राइट नाउ। यहाँ पे ए क्या कर सकता है, ए एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि 10 लाख रुपीज हो सकता है, 5 लाख रुपीज, कितने भी, कि अब मैं रेडी हूं पे करने के लिए। वो राइटिंग में होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए। तो जैसे ही आप प्रॉमिस करते हो कि टाइम बार्ड डेट है, लेकिन आई एम रेडी टू पे इट नाउ, एंड दैट प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड, वैसे ही किस में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स अब जैसे ही ने बोला कि मैं 5 लाख रुपीज पे करने को रेडी हूं, इवन दो लिमिटेशन पीरियड हैज एक्सपायर्ड, नाउ बी is entitled to recover this 5 lakh rupees from A. Okay, next we have to study all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. तो हमने देखा था कि agreement it is a big circle, contract is small circle, यानी कि सारे agreements contract नहीं होते हैं। कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑल द एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और हमने लास्ट क्लास में डिटरमाइन किया था कि ये एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है, मींस कोर्ट में जाके इससे रिलेटेड आप रेमेडी क्लेम कर सकते हो, तब हम बोलेंगे कि ये सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, अगर आप कोर्ट में जाके उससे रिलेटेड लॉफुल रेमेडी क्लेम कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। सेकंड, पार्टीज का
फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और कहीं पे भी कोई भी लॉ उसे एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं और उसे बोला हुआ है सारे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, तो ये सारे एग्रीमेंट्स एक्चुअली वॉइड होंगे क्योंकि लॉ उन्हें पर्टिकुलरली एक्सप्रेसली उन्हें वॉइड डिक्लेयर करता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज फ्री कंसेंट, कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, which agreements are expressly declared to be void under the Indian Contract Act. So that is all for today. Thank you everyone.